آتا ہے کسی انسان کا افضل ہونے میں تو آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ صدیق اکبر کا نمبر آتا ہے۔ حضور نے جب ختم نبوت کا اعلان کیا تھا، حضور نے جب ختم نبوت کا اعلان کیا تھا تو یہ یار غار صدیق اکبر کوئی مکے کے عام آدمی نہیں تھے، مکے کے عام شہری نہیں تھے، بلکہ مکے کی سب سے بڑی عدالت کے قاضی تھے، قاضی القضاء تھے، اور اس وقت تک کوئی فیصلہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا تھا جب تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مہر نہ لگا دیا کرتے تھے، جب تک وہ چیز مکمل نہیں ہوتی تھی۔ اتنے بڑے آپ قاضی تھے۔ حضور نے ختم نبوت کا اعلان کیا، غار ہیرا سے نکلے، نکلنے کے بعد ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ آپ کی آواز میرے تک کب پہنچے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے اوپر پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا پسینہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں آج ایک بات بتاتا ہوں، کسی کو پتا نہیں ہے، میں تمہیں ہی بتاتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ میں بشارت ابن مریم علیہ السلام ہوں، جس کی خوشخبری عیسیٰ پیغمبر نے دی تھی، میں ہی وہ اللہ کا آخری نبی ہوں۔ لیکن اس کے بعد خدیجہ نے کیا پیارا جواب عرض کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو آج بتا رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں، میں نے تو آپ کو نبی مانا تھا، تبھی تو اللہ اکبر آپ سے نکاح کیا تھا، پہلے ہی نبی مان لیا تھا۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا تو پھر دیر کس بات کی ہے، کلمہ پڑھو اور پڑھ لو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ محبوب اب تک تو ایسی ہی تبلیغ تھی، لیکن اب علل اعلان تبلیغ کی جائے۔ تو مصطفیٰ علل اعلان تبلیغ کے لیے نکلے اور مکے والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مکے والوں سے کہا ہے مکے والوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بھاری فوج ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کا اعتماد کرو گے؟ تو کفار و مشرکین کا ایک ہی جواب تھا کہ ہاں محمد ابن عبداللہ ہم آپ کی بات کا اعتماد کریں گے، اس لیے کہ ہم آپ کو بہت امانت دار سمجھتے ہیں، بہت سچا جانتے ہیں، بہت حق پہ جانتے ہیں۔ تو حضرات اس کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا یہ بات تو صرف سمجھانے کے لیے تھی، لیکن بات اوریجنل یہ ہے، جو میں اعلان کر رہا ہوں وہ اعلان یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب اتنی بات کو سنا تو ان میں تو ہلچل مچ گئی کہ ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ گنتی کے چند مسلمان ابھی ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بات ہم سے یہ کہہ دیں گے۔ چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی، بلا وجہ کی باتیں شروع ہو گئی۔ آپ کے خاندان والوں نے، آپ کا چچا ابو لہب جو سڑا ہوا کافر تھا، اس نے طرح طرح کی باتیں کرنے لگی کہ ماذ اللہ، مصطفیٰ سے کہنے لگا تمہارے ہاتھ برباد ہو جائے، تمہارے ہاتھ یہ ہو جائے۔ اس بات کو سنا مصطفیٰ غمگین ہو گئے، تو جیسے ہی مصطفیٰ غمگین ہوئے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ انہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ میرے محبوب کے برباد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہاتھ برباد ہوں گے تو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں گے، ابو لہب کے ہاتھ اللہ پر تباہ ہوں گے، ابو لہب کے ہاتھ خراب ہوں گے۔ اس لیے کہ اے محبوب آپ کے ہاتھ خراب ہے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ ید اللہ ہے، آپ کی زبان لسان اللہ ہے، آپ کا امر اللہ ہے، آپ کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، آپ کا وجود محمد رسول اللہ ہے۔ آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ افسوس نہ کریں۔ حضرات بہت چیموں گوئیاں ہوئی، سمجھ میں آ رہی ہے یا یوں ہی گردن ہلا رہے ہو؟ مولانا تقریر کر رہے تھے، خطبہ پڑھا عربی میں کہ بولے سمجھ میں آ رہی ہے،
अब पब्लिक क्या बोलती, कहती हाँ समझ में आ रही है। मौलाना ने बोला जब समझ ही गए हो, समझ में आ रही तो मेरी जरूरत ही क्या, मैं जा रहा हूँ। हजरात मोहतरम वो चल दिए। कहा पब्लिक ने कुछ समझाया नहीं कि हमने तो यही कहा समझ में आ गई। तो हजरात कहा एक बार और बोला, और अब के आधे कहना समझ गए और आधे बोलना नहीं समझे। फिर बोले कुर्सी पे बैठे का समझ गए, तो आधे बोले समझ गए और आधे बोले। तो मौलाना चालाक थे, वो बोले जो समझ गए हैं वो ना समझो को समझा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बोले यार करे तो क्या करे, बार बार नजराना लेके भाग रहे। बोले एक बार और बुला लो, आपके सब गुस्से में कहना कि अब तक तुमने समझाया क्या है। मौलाना फिर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोले तीसरी बार आया हूँ, अब समझे नहीं समझे। बोले मौलाना तीसरी बार खर्चा करा दिया, समझाया क्या है। बोले जब मैं एक जगह जाता हूँ पब्लिक समझ जाती, तीसरी मर्तबा में नहीं समझे, अब तुम्हें खुदा ही समझे। बहरहाल ऐसा मामला या नहीं, सब समझदार है, भिलाई के दयूर मुसलमान है। जहाँ ऐसे ऐसे उलमा रहते हो वहाँ तो आप सब पढ़े लिखे रहेंगे, अल्लाह अकबर समझदार रहेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जेबे गोया शुरू हो गई मक्के के बाजार में। ईमान की बात जब मुस्तफा ने कही, कुरान की बात जब मुस्तफा ने कही, दीन की बात जब मुस्तफा ने कही, अल्लाह की तौहीद की तरफ जब बुलाया तो जेबे गोया। उसके बाद दोबारा हुक्म हुआ कि आप सदवा ना करें बल्कि तबलीग करें। मुस्तफा ने दोबारा तबलीग की तो मक्के के चौधरी आ गए। मुस्तफा ने फरमाया बाद में मत कहना कि मुझे कहा नहीं था, हमें पता नहीं था दीन के बारे में, इस्लाम की दावत किसी ने दी नहीं थी। अब भी वक्त है, इस्लाम लेकर आ जाओ, कुरान पर ईमान लेकर आ जाओ, अल्लाह को एक मानना शुरू कर दो। 360 जो बुतों की पूजा करते हो, इन बुतों की पूजा शिर्क है, कुफ्र है, ये गलत है। अल्लाह को मानो जो अल्लाह एक है, मुझे आखिरी नबी मानो। तो कहने लगी टाइम हो गया, तुम्हें तबलीग करते करते ये बताओ तुम पे कोई ईमान लेकर आया। तो मुस्तफा ने फरमाया हाँ ईमान लेके आई है एक औरत जिसका नाम खदीजतुल कुबरा है। तो कहने लगे मक्के के चौधरी वो तो आपकी बीवी है, बीवी तो शोहर का कहना मानेगी, कोई और बताओ। तो मुस्तफा ने फरमाया अली का, अली तो बच्चा है। बिलाल की बात कही तो कहा बिलाल तो गुलाम है। कुफ्फार और मुशरिक कहने लगे कि खदीजा बीवी है, वो ईमान लाई तो क्या बड़ी बात है। बिलाल तो गुलाम है, वो ईमान लाए तो क्या बड़ी बात है। अल्लाहू अकबर। मौला अली तो बच्चे हैं, ज़ैद बिन हारिसा मवाली है। कोई ऐसा बताओ जो आकिल भी हो, बालिग भी हो, समझदार भी हो, मालदार भी हो, ऐसा कोई शख्स ईमान लाया। जब इतनी बात कही तो इस वक्त यारे गार सिद्दीक अकबर अपनी अदालत की कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें पता चला मुस्तफा को ताना दिया जा रहा है, आका को ताना दिया जा रहा है, उनके बारे में गलत बात कही जा रही है। तो उस वक्त अदालत की कुर्सी से सिद्दीक अकबर ने यह ऐलान कर दिया, ऐ दुनिया वालों, खदीजा के बारे में तुमने एतराज किया, यह एतराज भी गलत था। मौला अली के बारे में एतराज किया, यह एतराज भी गलत है। बिलाल के बारे में एतराज किया, यह एतराज भी गलत है। अरे ठीक है, तुम्हारे नजदीक ये बातें सही होंगी, कोई ऐसा बताओ जो अक्ल रखता हो, वो ईमान लेकर आया हो, जो बालिग हो, जो समझदार हो, जो मालदार हो। अरे सुनो दुनिया वालों, ये तो मुझे तो अक्ल वाला समझते हो, मुझे तो बालिग समझते हो, मुझे तो अमानतदार और मालदार समझते हो, यहाँ तुम्हें तो सब कुछ हम समझते हैं। तो उस वक्त अदालत की कुर्सी पे सिद्दीक अकबर ने अलल ऐलान तबलीग सुना दी थी कि मैं भी मुस्तफा पे ईमान लेके आ रहा हूँ। उस वक्त कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई आने वाले आते रहो, साइलेंट बैठते रहो, इसमें अल्लाहु अकबर कोई ऐसी बात नहीं कि जब तक बोलेंगे नहीं जब तक बैठेंगे नहीं, वरना माशाल्लाह माहौल यहाँ अच्छा है। कल भी मैंने तारीफ करी थी राजनांदगांव में, वरना मामला ऐसा कि चाय और कुर्सी। एक जगह के देखा झालावाड़ राजस्थान में, मैं तकरीर कर रहा था, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, चाय आ गई बीच में। क्या आ गई? चाय आ गई। मौलाना बोले यार चाय बाद में पिला दियो, तकरीर सुन लो। बोले चाहे तकरीर हो या ना हो, चाय पहले होगी। तकरीर हो या ना हो,
चाय पहले होगी चाहे जलसा अगले साल होगा। तो बात ये झूठ नहीं, को लतीफा नहीं है। कारी सखावत मुरादाबादी भी वहां पे थे और उन लोगों ने इतनी कमबख्ती करी कि चाय पे ही जलसा खत्म कर दिया। 2 मौलानाओं का नंबर भी नहीं, बोले चाय अभी होगी जलसा अगले साल होगा। तो कौम इतनी बुद्धू है जब तो पिट रही है। बहरहाल आप तो समझदार है माशाल्लाह, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार है। साइलेंट आके बैठ भी सकते हैं और साइलेंट सुन भी सकते हैं। और हजरात बिल्कुल मैंने दुनिया वालों को तबलीग की बात कर जब कही तो लोगों ने तरद्दुद किया। तरद्दुद का माना होता है करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। लोगों ने सोचा इस्लाम लाऊं या ना लाऊं। कहा लोग तो ये सोच रहे थे इस्लाम ईमान लाऊं या ना लाऊं, लेकिन सिद्दीक को मैंने देखा कि जब इसको इस्लाम की दावत दी तो इसने तरद्दुद नहीं किया, सोचा नहीं, लम्हा नहीं लगाया, बल्कि पूरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, हजरात इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन क्या खुशखबरी मुस्तफ़ा ने, अरे जो मुस्तफ़ा के लिए जितनी कुर्बानी देता है अल्लाह उसे इतनी ही इज्जत अता फरमाता है। हुजूर के करीब तो इमाम हुसैन है, नवासे भी हैं, हजरत फातिमा के बेटे भी हैं, लेकिन नबियों के बाद नंबर सिद्दीक का रखा, हुसैन का नहीं रखा। नंबर अहले बैत का नहीं, नंबर सिद्दीक का। तो इस्लाम में अदल और इंसाफ किया जाता है। ये नहीं कि अपने खानदान को जो जिस तरतीब पे है उसी तरतीब पे मुस्तफा ने रखा है। तो इतनी कुर्बानियां देने के बाद इतनी इज्जत मिल गई सिद्दीक अकबर को। कसम खुदा की हुजूर के बाद, नबियों के बाद अगर नंबर आ रहा है तो सिद्दीक अकबर का आ रहा है। और सिद्दीक जिनके मुतालिक मुस्तफा ने फरमाया, जैसे ही ईमान लेके आए तो मुस्तफा ने फरमाया सिद्दीक ये मेरा दुनिया में भी साथी है और आखिरत में भी साथी है। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई साथी तिजारत के लिए बनता है, कोई साथी मोहल्ले का बनता है, कोई साथी गांव का बनता है, कोई साथी शहर का बनता है, कोई साथी 1 साल के लिए बनता है, कोई साथी 5 साल के लिए बनता है। कुछ ऐसे साथी होते हैं बीच में लड़ाई हुई, रिलेशन टूटते हैं, ताल्लुक टूटते हैं, वो मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है। लेकिन वारे सिद्दीक तुमने क्या मर्तबा पाया, इतना रिलेशन मुस्तफा से मजबूत कर लिया, पक्का कर लिया कि आपकी दोस्ती, आपकी वफादारी, आपकी मोहब्बत और उल्फत सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा ने खुशखबरी दे दी कि मेरा ये साथी दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। ऐसा साथी जंगल में साथ, मकान में साथ, हर जगह मस्जिद में साथ, गार में साथ, आज मजार में भी साथ। अरे ये साथ ही तो साथ ही की बात है, ये साथ नहीं है तो क्या है कि दुनिया नबी के दरवाजे पर जाती है, दुनिया नबी के दरवाजे पर जाती है, लेकिन हिजरत की जब रात आ रही है तो नबी सिद्दीक के दरवाजे पर जा रहे हैं। वरना हर एक आदमी नबी के दरवाजे पर जाता है। होता भी यही है, उसूल भी यही, मुस्तफा सबसे बड़े हैं। इज्जत चाहिए तो उनकी बारगाह में जाओ, दौलत चाहिए तो उनकी बारगाह में जाओ, मिल्कियत चाहिए तो उनकी बारगाह में जाओ, शोहरत चाहिए तो उनकी बारगाह में जाओ, कारोबार चाहिए तो उनकी बारगाह में जाओ। हर कुछ मिलता है नबी के दर से। हर अल्लाहु अकबर मांगने वाला होना चाहिए। वल्लाहु युती व अना कासिम। सरकार फरमाते अल्लाह ने मुझे अता कर दिया है और मैं बांटता चला जाता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मालिको मुख्तार बनाया है। अल्लाह अकबर, नबी भी देते हैं और वली भी देते हैं। बहुत से लोग माज़अल्लाह क्यों मांगते हो नबियों से, क्यों मांगते हो वलियों से, क्यों जाते हो मज़ारों पर? अबे वली से नहीं मांगे, तुझसे मांगे, तेरे घर चले तू देगा। मेरे प्यारों, तो इनके बातों में मत आना। नबी भी देते हैं, वली भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। और ऐसा दिया है कि जो अकीदत और मोहब्बत के फूल लेकर जाता है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, नबी और वली के देने में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। उनसे मांगने वाला होना चाहिए, उनसे लेने वाला होना चाहिए, हर एक चीज मिलती है। मुस्तफा पहुंचे किसके दरवाजे पर? सिद्दीक के दरवाजे पर। दरवाजा खोला, अर्ज करते या रसूल अल्लाह हिजरत कर लें? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं वही काम करता हूँ जो हुक्म खुदा होता है।
वही पयाम मुस्तफा होता है। मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर यहाँ से हिजरत नहीं कर सकता, हिजरत करेंगे लेकिन अभी वक्त है। एक वक्त वो भी आया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि महबूब हिजरत करो, हिजरत के लिए हुक्म हो गया। उस वक्त मौला अली सरकार की बारगाह में हाजिर थे, हिजरत का हुक्म हुआ, मौला अली हुजूर की बारगाह में हाजिर। मुस्तफा ने फरमाया अली मैं तो जा रहा हूँ सिद्दीक को लेकर हिजरत करके, लेकिन अली आज तुम मेरे बिस्तर पे सोना, अमानतें बांटना, ये कुछ कुफ्फार और मुश्रिकीन की अमानतें हैं। अगरचे ईमान लेकर नहीं आए थे वो लोग, लेकिन मुस्तफा को बहुत अमानतदार समझते थे, जब ही तो मुस्तफा की बारगाह में अमानतें रखते थे। मुस्तफा ने फरमाया अली सुबह को उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने में आना। क्या किस्मत पाली अली ने, हमें किसी बड़े का बिस्तर मिल जाए तो हम खुश नसीब समझते हैं। बाहर जिस बिस्तर पे मुस्तफा आराम फरमा रहे हो उस बिस्तर पे आज अली आराम फरमाएंगे। क्या किस्मत पाई। उधर 40 काफिर मुस्तफा के घाट में, कब निकले कब मारे, कब निकले कब मारे, कब निकले कब मारे। और मुस्तफा जाने रहमत रात में निकल भी गए और किसी को पता ही नहीं लगा। हजरात मोहतरम निकल गए, किसी को पता नहीं लगा। सुबह एक बुड्ढा आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले ये सोच रहे कब निकले कब मारे। बोले हो गई पूरी रात खराब, घर पे जाके सो जाओ। बोले क्यों? बोले वो तो कब के निकल गए। बोले कैसे निकल गए? हमने तो पलक नहीं झपकी, 40 आदमी 80 आंखें। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, निकल गए। बोले कोई सबूत? सबूत भी तुम्हारी टोपियों पे छोड़ के गए। हजरात मोहतरम जब टोपियों पे देखा तो सबकी टोपियों में कंकरियां थी कि हाँ ये सबूत है, ये सबूत है। अल्लाह अकबर कह रहे हैं हमने तो पलक नहीं झपकी, कब निकल गए, कब निकल गए। तो हजरात हुजूर हर एक किसी को नजर नहीं आते, हुजूर उनको नजर आते हैं जिनके दिल में सिद्दीक वाली मोहब्बत होती है, उमर वाला प्यार होता है, उस्मान वाला इसार होता है। अल्लाह अकबर उन्हीं को। आज भी बहुत से लोग कहते हैं हमें तो हुजूर नजर आते ही नहीं, हुजूर नजर आते ही नहीं, समझ लो कंकरी लग गई होगी। हजरात जब ही तो नजर नहीं आते, वरना जो हजरात जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफा है, जो आशिक़ रसूल है, उन्हें हुजूर आज भी बज़ाहिर मदीने में है, लेकिन बातिन हर मोमिन के सीने में। सुना है रहते हैं आका फकत मदीने में, गलत है रहते हैं वो आशिकों के सीने। तो हजरात हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह नजर आते हैं। तो हजरात हिजरत की रात है, मुस्तफा की बिस्तर पे कौन सोया? अरे बोलिए। अली ऐसे सोए। मुस्तफा ने जब फरमाया अली सुबह को उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। अली समझ गए कोई बात नहीं, दुश्मन अगर दरवाजे पर है, कोई बात नहीं, तलवार दरवाजे पर है, लेकिन जब मेरे आका ने डिक्लेयर कर दिया, मेरे आका की जुबान मुबारक से निकल गया कि अली सुबह को उठना, अमानतें बांटना। अली कहते हैं जितनी आराम की नींद मैं उस रात सोया, जितनी चैन की नींद मैं उस रात सोया, कभी ना सोया। मेरे प्यारों जिस दरवाजे पर 40 तलवारें नजर आ रही हो, जिस दरवाजे पर दुश्मन नजर आ रहे हो, क्या उस आदमी को नींद आ सकती है? हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए तो पूरे खानदान की नींद हराम हो जाती है। उधर तो 40 थे, लेकिन अली कहते हैं मैं बहुत आराम से सोया। अली से पूछा क्यों सोए? इसलिए उनको मुस्तफा की बात पर पूरा यकीन था।